Hello students, today we will be studying the arguments, and within the argument, the type of argument which we will be studying is the default argument. Now here we can see the program, a particular function df sum a comma b and c is equal to a plus b and return c. Now what does it denote? Like here I can see that I have not asked the user to enter the value of a within the function, and I have not asked the user to enter the value of b also within the function. Like a is equal to integer input, enter the value of it. I have not asked for this. So why have I not asked for this? Because here I am using an argument. Now I can see that when I've called the particular function sum, then over here only when I've been calling, I've mentioned a is equal to integer input into the first number and b is equal to integer input into the second number. Now here I've asked the user to enter the values while calling of the function, and I've not made the function independent. That means it has to be dependent when for the values of a and b, and a and b will be passed to the function whenever I'll be calling it. Now from here we can see that the values of a and b have been entered by the user, and x is equal to sum a comma b. Now I am calling that particular function because of the return statement. It says return c. That means whatever is the addition of a and b, the function is returning the addition, and the addition is getting stored in x. Now it says that the sum of two numbers is x. Now I hope that the concept of argument is clear, as in the previous video, that means functions part 1, I have explained the concept of arguments from there. If you have any sort of doubt, you can just open the video part number 1 and you can have the idea of arguments. Now here I am having a different function, and I have used a default argument out here. Now what is a default argument? For example, the user has just forgotten to assign a particular value as argument to the function. Then in that case default arguments come to help in such a situation. Like for example आप यहाँ देख सकते हैं DEF साल है, base is equal to 5000 है, तो DE I have mentioned DE is basic into 10 divided by 100. Again HRA is 8% and PF is 5000. Now net salary is equal to basic plus DA plus HRA, and of course PF, I need to subtract the PF also. And what is the PF? PF is 5000. So basic plus DA plus HRA minus PF I need to mention out here. Now I have not used a return statement, I have just used the print statement. I am just printing the values out here. Now here you can see that I have mentioned basic is equal to 5000. Now what is the use of this particular argument, and why have I assigned 5000 to basic? Now basic is equal to integer input enter basic salary. Now I have asked the user to enter the basic salary. Now for example, now the user forgets. Now the user is also passing the value basic. ठीक है. For example, the user is passing the value 6000. Now what does that means? That means कि 5000 will be replaced by 6000, will be replaced by 6000. तो यहाँ पे बेसिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बेसिक की भी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 6000. Now there can be one more condition also, और वो condition ये है कि मान लीजिए अब यूजर भूल गया बेसिक की वैल्यू देना. The user has forgotten to assign the value of basic. Now what will happen? फिर इसका क्या आउटपुट होगा? तो इसका आउटपुट जो है वो 5000 के हिसाब से जो कैलकुलेशन है वो होगा. Because what does default argument say? If the user has passed an argument, then it's okay, and the user has not assigned a particular argument, तो जो आर्ग्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट दी जाती है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 5000 है, तो तब वो जो वैल्यू है वो एग्जीक्यूट होगी. नाउ अगर यहाँ पर यूज़र वैल्यू देता है, कोई भी वैल्यू देता है, मान लीजिए 8000 देता है, या यूज़र से एंटर देता है, कुछ भी देता है फॉर एग्जांपल, तो जो भी यूज़र देता है, फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने मान लीजिए 8000 दिया है, तो यहाँ पर जो बेसिक है उसकी जो वैल्यू है वो 8000 हो जाएगी. और अगर यूज़र ने कोई भी वैल्यू नहीं दी है,
इन दैट केस जो कैलकुलेशन है वो किस हिसाब से चलेगा, वो 5000 से चलेगा। बेसिक का मतलब है इफ यू हैव फॉरगॉटन टू असाइन अ वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट, तो जो उसके पास वैल्यू है वो उसी से कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, और यही होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल बेसिकली वी कैन डू इन ऑर्डर टू क्लियर द कंसेप्ट। नाउ for example I've written here comma discount is equal to 800 rupees। now अब हम मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर मान लीजिए जो भी कस्टमर है वो आपके शॉप में आ रहा है, अगर उसने जो भी परचेसिंग करी है और अगर उसके जो परचेसिंग अमाउंट है अगर वो 1000 से ऊपर है तो बिल में जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट होगा 10%। और अगर मान लीजिए उसका जो आइटम है, उसकी जो परचेसिंग है, उसका जो बिल है वो 1000 से नीचे है तो डिस्काउंट कितना होगा, 800 रुपीज़। यानी कि दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो बिल अमाउंट है वो 1000 से ऊपर होगा। अगर आपका बिल अमाउंट जो है 1000 से ऊपर है तो आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो आपका बिल अमाउंट के ऊपर 10% का है। और मान लीजिए कि अगर आप की जो परचेजिंग है वो 1000 से नीचे की है तो आपको सिर्फ जो डिस्काउंट है वो 800 रुपीज़ का मिलेगा। ना इफ बिल इज ग्रेटर देन 1000 तो डिस्काउंट जो है वो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए एक स्पेसिफिक चीज जो है वो यहाँ पे मैंने एल्स कंडीशन नहीं लिखी, मैंने ये नहीं लिखा एल्स डिस्काउंट इज इक्वल टू 800, मैंने ये नहीं लिखा है। तो मैंने ये क्यों नहीं लिखा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। नाउ इस केस में जो है वील हैव दिस पर्टिकुलर डिफॉल्ट स्टेटमेंट। तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या है बेसिकली, नाउ लाइक बिल इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर द बिल अमाउंट। हमने बिल अमाउंट जो है वो एंटर करी। मान लीजिए मैंने बिल अमाउंट जो है वो 500 एंटर करी। नाउ एग्जाम्पल आई हैव एंटर्ड द बिल अमाउंट एंड द बिल अमाउंट इज ₹500। अगर जो बिल अमाउंट है वो 500 रुपये है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पर ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो जब इफ कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो मुझे डिस्काउंट की वैल्यू भी नहीं मिल रही है। मतलब यहाँ पर डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट ही नहीं हो रही है, तो मैं डिफॉल्ट वैल्यू ले लूंगी 800 रुपये। तो आई विल से प्रिंट द डिस्काउंट इज ₹800। अब मान लीजिए कि जो मेरा बिल की जो वैल्यू है वो 1500 रुपये है, या मान लीजिए अब मेरा जो बिल है उसकी जो वैल्यू है वो 1000 रुपीज़ है। तो अब यहाँ पर इफ कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है और डिस्काउंट की वैल्यू निकल रही है। इसका मतलब अब जो वैल्यू आएगी डिस्काउंट की वो ओवरराइड कर देगी, यानी कि अब जो डिस्काउंट है वो 800 रुपीज़ का नहीं है। अब जो डिस्काउंट है वो क्या होगा, 1000 × 10/100। नाउ यानी कि जो डिस्काउंट है वो मेरा ओवरराइड हो चुका है। यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अगर मान लीजिए मैंने 700 रुपये डाले तो इसका मतलब है इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही और डिस्काउंट की वैल्यू मैं प्रिंट कर रही हूँ। डिस्काउंट, हाँ, डिस्काउंट इज इक्वल टू 800, यानी कि मैं जो वैल्यू है डिस्काउंट की मैं प्रिंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो डिस्काउंट की जो मेमोरी लोकेशन है वहाँ पर एक्चुअली क्या स्टोर्ड है, वहाँ पर क्या स्टोर्ड है, 800 ही स्टोर्ड है ना। तो वहाँ पे क्या स्टोर्ड है, 800 स्टोर्ड है, यानी कि 800 का 800 ही रहेगा। और मान लीजिए अगर मेरा जो बिल है वो मान लीजिए अगर आपका जो बिल है वो 1100 हो गया तो क्या हुआ, फिर मैं न्यू डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट कर रही हूँ और उसके अंदर क्या होगा, फिर न्यू वैल्यू जो है वो मेरे डिस्काउंट की वो पुरानी वैल्यू को ओवरराइड कर देगी। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का क्या कंसेप्ट होता है। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब यही होता है कि अगर मान लीजिए यूज़र कोई वैल्यू देता है तो जो ये आपके डिस्काउंट की जो वैल्यू है यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ओवरराइड हो जाती है। अगर यूज़र कोई वैल्यू नहीं देता है तो जो वैल्यू है वही की वही रहती है। एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे बेटा कि अगर आप मान लीजिए डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो आप
राइट हैंड साइड से असाइनमेंट शुरू करेंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ लिखते हैं बिल, बिल में आपने डिफॉल्ट वैल्यू दी नहीं और आप यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं, तो ये एक एरर है। तो क्यों एरर है? क्योंकि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो है हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बिल इधर, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि आप जो बिल है वो इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें डिफॉल्ट नहीं है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ से आप क्या स्टार्ट करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो आप देना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपना नॉर्मल वेरिएबल इस तरफ से देंगे।